Let's talk about the case studies related to the postmodern media. The case study should be from last 5 years. First thing is the most important thing. Your case study should be from last 5 years. ठीक है जी. So I will try my level best to give you all the case studies based on last 5 years. ठीक है. First you need to talk about the film, and you need to link the film with the postmodern ideas. ठीक है. The most important part is this. A lot of students just used to introduce the film, but they're not able to link the film with the postmodern ideas. It's not going to work for you, okay? Like you can talk about hyperreality, how this film is considered as a hyperreal film, how this film is a part of pastiche, bricolage, ठीक है. It could be intertextuality. It's more about linking the film, okay? Self-reflexivity. इसके अलावा हमारे पास आयरनी का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है. मॉक करना किसी चीज़ को, सेटायर, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं पोस्ट मॉडर्न आइडियाज़ के साथ लिंक होती है, ठीक है. देखिए कुछ फिल्म डायरेक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न मीडिया. सबसे पहले क्रिस्टोफर नोलन है. इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न के अंदर टेरेंटिनो आ जाते हैं. बट द प्रॉब्लम विद द टेरेंटिनो इज़ दिस कि टेरेंटिनो की जो लास्ट फिल्म थी वो थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ठीक है. अब वो फिल्म जो थी वो लास्ट 2019 में रिलीज़ हुई थी, तो वो 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट फिल्म आती है दैट इज़ ओपेनहाइमर, ठीक है, जो हमारे हर एलिमेंट को कवर अप करती है. अब मैं आपके सामने उसको पूरा प्रेजेंट करूँगा. चलिए जी, आपके सामने मैंने एक पूरी केस स्टडी सामने रखी हुई है, ठीक है. हम इसके कुछ एरियाज़ को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है. सबसे पहले हम बेसिक फिल्म का इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ओपेनहाइमर इज अ 2023 बायोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म written and directed by Christopher Nolan, based on the life of J. Robert Oppenheimer, the American physicist who led the development of atomic bomb during the World War II. ठीक है जी, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. The film is widely regarded as a masterpiece of postmodern cinema. ये असल चीज़ है. As it challenges and subverts the conventions and expectations of the biopic genre. देखो क्या किया बेटा, इतने चैलेंज किया और सबवर्ट किया कन्वेंशंस को और एक्सपेक्टेशंस को बायोपिक जॉनरा. इट्स अ बायोग्राफी, सिंपल सी बायोपिक है, बट द वे दे डेवलप द बायोपिक इज क्वाइट इम्प्रेसिव, as well as the historical and scientific narratives of the atomic age. One of the main feature of postmodernism is the rejection of grand narratives. ठीक है, लियोटार्ड की थ्योरी थी ग्रैंड नैरेटिव्स के हवाले से, ठीक है. इट रिजेक्ट्स द ग्रैंड नैरेटिव्स और द ओवरआर्चिंग स्टोरीज that claim to explain and justify the world and its values. यानी कि दुनिया का जो prospect था इसके हवाले से उसको change करने की कोशिश की. The film portrays Oppenheimer as a complex, contradictory character who is not easily categorized or labeled. He is shown as a brilliant scientist, a loyal patriot, and conflicted humanist, a ruthless pragmatist, and a tragic hero. ठीक है जी. It's more about a narrative and a haunted villain. He is also shown as a man who struggles with the personal relationships, his professional ambitions and ethical dilemmas and psychological demons. The film explores the ethical and moral issues surrounding the development of the use of atomic bomb without providing clear or simple answers. यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसने ऑडियंस पे छोड़ दी कि भाई ऑडियंस फैसला करे कि कौन सही था और कौन गलत था. The film shows how Oppenheimer and his colleagues faced various challenges and pressures from the military, government, and public and themselves. The film also shows how Oppenheimer and his colleagues had different views
and opinions on the necessary justification and responsibility of creating and deploying the bomb. देखो ये पार्ट सारा क्या है बेटा, नैरेटिव वाला हिस्सा है. It's a narrative of the film. इसको हमने लिंक किया रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव से. ठीक है जी, यहां तो समझ में आती है बात. Now we are going to connect this whole Oppenheimer case study with the postmodernism. Another characteristic of postmodernism is use of irony, pastiche and intertextuality, or the playful and critical appropriation of existing styles, यानी कि breaking the grand narrative, genre and text. Oppenheimer employs these techniques to create complex and rich cinematic experience that references and remixes various elements from history, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड फिल्म. अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है. हम क्या कह रहे हैं कि भाई फिल्म ने इंटरटेक्सचुअलिटी भी की और बहुत सारी चीज़ें पेस्टिज भी की. फ्रॉम वेयर? हिस्ट्री के भी एलिमेंट्स थे इसके अंदर, इसके अंदर साइंस के एलिमेंट भी थे. दिस वॉज नॉट अ कम्प्लीटली न्यू ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्टोरी. सही है. लिटरेचर, आर्ट एंड फिल्म. ठीक है. Oppenheimer borrows from the noir genre to create a dark and mysterious atmosphere that reflect Oppenheimer's inner turmoil and moral ambiguity. देखो अब भी नहीं बात सुनो. अब पेस्टिज किसके साथ उठाई जा सकती है? नॉय जॉनरा के साथ. ठीक है. The film also references various works that influence or were influenced by Oppenheimer. ठीक है. Another aspect of postmodernism is the blurring of boundaries between reality and fiction. अब देखो मैंने कहा ना, Oppenheimer as a human being, as a scientist एक reality था. उसके बारे में लिखी गई डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्रीज उसकी सिमुलेशन ऑफ रियलिटी थे. Oppenheimer फिल्म एक रिप्रेजेंटेशन और इमेज ऑफ दैट. लेकिन हमारे नज़दीक ऑल दीज थिंग्स गॉट ब्लर्ड. सही है. वी कैन नॉट क्रिएट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन ओरिजिनल ओपेनहाइमर एज अ ह्यूमन एंड द फिल्म. एम आई राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या करता है ये चीज़, ब्लरिंग बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन. अब इससे क्या होगा? हाइपर रियलिटी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. और हाइपर रियलिटी, पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड स्टेबल मीनिंग. सही है. यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो होगा उसको चैलेंज किया हुआ है, यानी कि फिक्स मैटर नैरेटिव को चैलेंज किया हुआ है. एंड शोज हाउ रियलिटी इज मीडिएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज. ठीक है. यानी कि हर बंदे की, अब इसका इस बात का मतलब ये है कि रियलिटी वही है जो इंसान सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करता है फीलिंग्स एंड इमोशंस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू. कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी. Oppenheimer explores this theme by depicting hyper-realistic aesthetic experience that enhances the impact and spectacle of the bomb. The impact of the bomb was enhanced with extreme silence and then sudden sound plus sandstorm. ठीक है. अब क्या हो रहा है? वही सिंपल सी बात है, ये एक हाइपर रियलिटी क्रिएट की जा रही है. हाइपर रियलिटी.
The bomb produced a flashlight. The bomb produced a flashlight that was brighter than the sun, followed by a blast wave that leveled buildings, ignited fires, and hurled people and debris into the air. The bomb also generated intense heat that burned and vaporized everything within a radius of several kilometers. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? ये बॉम्ब की हाइपर रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, देखो मज़े की बात ये है कि अगर आप हकीकतन बॉम्ब का एक एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट देखें तो शायद दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने रियलिटी में देखा हो. क्योंकि अगर आपने बॉम्ब का ब्लास्ट देखा तो आप इस दुनिया में नहीं. वो सिर्फ एक सिमुलेशन ही हो सकती है. समझ आई बात? बट जो सिमुलेशन क्रिएट की जा रही है, हमने ओपेनहाइमर में जो एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट देखा, वो हमारे नज़दीक एक रियलिटी बन गया. हमारे दिमाग की कोशिश के अंदर वही रियलिटी ऐसा ही ब्लास्ट होता हुआ. दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ हाइपर रियलिटी. समझ आई बात? ठीक है. तो अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, अगर मैं इस जॉनरा की, बायोपिक जॉनरा की बात करूं, तो बायोपिक जॉनरा की ख़ास बात ये होती है, इट गिव्स यू द फील ऑफ रियलिटी कि ये कोई इंसान है. आप बायोपिक जॉनरा की संजू भी देख लो, एक सिंपैथेटिक व्यू आपका क्रिएट हो जाता है संजय दत्त के हवाले से कि यार ये बड़ा शरीफ इंसान था. ठीक है, तो बात सारी ये है कि दिस इज़ बिकॉज वो रियलिटी के बहुत करीब होती है. लेकिन फिल्म कभी भी रियलिटी नहीं होती, वो हमेशा एक सिमिलैक्रम होती है, एक ऐसी क्रिएटेड प्रोडक्ट होती है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता. वो जब आप किसी चीज़ का स्क्रीन प्ले लिखते हो तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक दुनिया, एक तख्लीक करते हो. यू क्रिएट अ वर्ल्ड. फिल्म इज़ अ वर्ल्ड. एम आई राइट? फिल्म इज़ नॉट अ रियलिटी. फिल्म इज़ अनदर वर्ल्ड. यू विल टेक योर ऑडियंस थ्रू दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड. समझ आई बात? तो अब क्या हुआ, इट मीन्स बट वो ऑडियंस के दिमाग में एक रियलिटी का इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करती है. वो चीज़ जो ऑडियंस के दिमाग में रियलिटी का इम्पैक्ट क्रिएट करती है, उससे क्या होता है मेरा बेटा, वो एक हाइपर रियल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हो जाती है. क्लियर हो गई बात? The movie is a mashup of several forms, themes and genres, ठीक है, including drama, epic thriller, biography, documentary and IMAX. The movie combines aspect of fiction. अब देखो, this is an example of bricolage. This is an example of bricolage. Merging different genres. Combines aspect of fiction and history, such as the IMAX black and white film sequences that depict the atomic bomb test. The movie also includes information from a variety of sources, including voiceovers, newspapers, articles, साइंटिफिक डायग्राम्स, इंटरव्यूज एंड आर्काइव फुटेज. ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ब्रेकोलाज फ्रॉम डिफरेंट, कलेक्टिंग डेब्रीज फ्रॉम डिफरेंट जॉनराज, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. ठीक है, as a result the movie produces a collage of sounds, picture that capture richness and diversity of Oppenheimer's life and contributions. The movie has a rich intertextual history because it mentions and quotes various texts from the media that deal with Oppenheimer or atomic bomb. For instance, the movie borrows the well-known phrase from the Hindu text Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds," which was spoken by Oppenheimer following the first atomic bomb test. The movie also makes references to other movies to explore nuclear conflict, technology, and morality, such as Dr. Strangelove, The Day After Trinity, The Watchmen. The movie also honors several Christopher Nolan's earlier films like Tenet, Interstellar, and Inception by utilizing themes of akin to dream, time travel, and paradoxes. ठीक है, क्लियर हो गई बात कि अब क्या हुआ, इंटरटेक्चुअलिटी हो गई. सिर्फ अब डिफरेंट फिल्म्स का रेफरेंस दिया जा रहा है फिल्म के अंदर. ठीक है, by fusing fact and myth, science and art, realism and fantasy, the movie presents Oppenheimer's and the atomic bomb in a hyper-realistic manner. The movie depicts the atomic bomb test and their aftermath realistically by utilizing cutting-edge photography, sound design, and practical effects. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डायरेक्टर ने यूज़ क्या किया, इसमें अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर मैंने जो की एलिमेंट से इसके नोट डाउन कर लें. एक तरफ इंटरटेक्चुअलिटी का रेफरेंस आ जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास प्रेस्टीज का रेफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने थोड़ी सी रिच करके और डेवलप करके पूरी केस स्टडी रख दी है. ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट था इस पूरी केस स्टडी का.
देखिए जी, मैं आपको इसमें छोटी सी टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ. लेट्स सपोज ये फर्स्ट आपके सामने जो पैराग्राफ खोला हुआ है, ठीक है, एंड दिस पैराग्राफ, इसके ऊपर आप हेडिंग डाल दें ब्रिकोलैज की. अब देखें, ब्रिकोलैज का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ डेब्रीज को जमा करके एक कंटेंट को क्रिएट करना. एवरीवन हियर. अब हमारे पास कौन कौन से ब्रिकोलैज जनरेट हो रहा है. ये ड्रामा जॉनरा है. ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे मेमोराइजेशन के वक्त. ड्रामा, एपिक, थ्रिलर, ठीक है जी, बायोग्राफी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री, एंड आईमैक्स. ये चारों पांचों कैटेगरीज को मिला के आपकी ये फिल्म बनती है. सो अगर हम इस केस स्टडी की तरफ आगे जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ब्रिकोलैज और कैसे क्रिएट हो रहा है. another example of bricolage is, ठीक है, अब हमारे पास फिक्शन एंड हिस्ट्री को मिक्स किया गया. फिक्शन एंड हिस्ट्री दोनों बड़ी क्वांटिटेटिव चीजें. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिल्म. ठीक है, फिर हमारे पास, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें से समझिएगा. एक तरफ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म सीक्वेंसेस हैं. सही है. उसके साथ एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग को भी दिखाया गया है. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि भाई इसने ब्रिकोलैज और कैसे यूज़ किया है, इस चीज़ को भी समझते हैं. इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा को यूज़ किया है. ठीक है, एक तरफ वॉइस ओवर्स हैं. ये प्रोडक्शन के हवाले से हम बात करें, वॉइस ओवर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है. इसके अलावा साइंटिफिक डायग्राम्स, ठीक है जी. इसके अलावा इंटरव्यूज एंड आर्काइव फुटेज, ये सब चीज़ों को मिला के भी कंटेंट बनाया गया है. इंटरव्यूज एंड आर्काइव फुटेज. ठीक है जी. सो हमारे पास ब्रिकोलैज की यहाँ पे ये सारी एग्जांपल्स निकलती हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं. इस पैराग्राफ पे आप हेडिंग डालिएगा इंटरटेक्सचुअलिटी. ठीक है. अब इंटरटेक्सचुअलिटी के अंदर हमारे पास पहले गीता का एलिमेंट आ जाता है. गीता का रेफरेंसेस आ गया. ठीक है, भगवत गीता जो है, जो क्या हो गया, भगवत गीता की सेइंग आ जाती है. ठीक है, तो और इसके अलावा आपके पास फिल्म्स के रेफरेंसेस हैं इंटरटेक्सचुअलिटी. इसके अलावा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज लव, ठीक है, इसके अलावा डे आफ्टर ट्रिनिटी, ठीक है. इसके अलावा आ जाती है वॉचमैन, इंटरस्टेलर, ठीक है, एंड इंसेप्शन. इन तमाम फिल्म्स के रेफरेंसेस जो हैं आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे मुख्तलिफ जगहों पे. ठीक है जी. फिर अगेन अब हम
इस पार्ट को एज अ हाइपर रियलिटी की तरफ से लेके चलते हैं। अब हाइपर रियलिटी कैसे क्रिएट हो रही है? इस फिल्म में साइंस का एलिमेंट भी नजर आता है, आर्ट, रियलिज्म, फैंटेसी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस हाइपर रियलिस्टिक मैनर में दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा फोटोग्राफी, साउंड एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू भी हाइपर रियल एलिमेंट क्रिएट किया गया। हाइपर रियलिटी को क्रिएट करने में फोटोग्राफी, साउंड, कि जिस टाइम पे ब्लास्ट होता है बिल्कुल जीरो साउंड आ जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स, इन तमाम के थ्रू भी हाइपर रियल वर्जन क्रिएट किया गया। सही है, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या समझ में आता है कि ये जो आपकी फिल्म है ये हाइपर रियलिटी को भी फुलफिल करती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जिसको हम आयरनी कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक कॉमेडी। ठीक है, ब्लैक कॉमेडी इज अगेन अ पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न जॉनरा, जिसको हम आयरनी या मिमिक्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, फिल्म मेकर्स ने क्या यूज़ किया है? फिल्म मेकर्स ने इसने आयरनी यूज़ की, सरकेज़म, ये सारे पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट्स हैं। सही है, एक हिस्टोरिकल फिल्म में सरकेज़म, आयरनी, ब्लैक कॉमेडी का होना बड़ा कोई ऑफ समझा जाता है या डिफरेंट समझा जाता है। ठीक है, पैराडॉक्स, ठीक है, और एग्जैजरेशन क्रिएट किया गया है। क्वांटम फिजिक्स हो गया, कि रिग्रेट ओवर द बॉम्ब्स हो गया। ठीक है, उसके अंदर फन ऑफ मिलिट्री पॉलिटिकल लीडर्स बनाया गया। ठीक है, लाइक विंस्टन चर्चिल हो गया, लेस्ली ग्रूव्स हो गया, लेवे स्ट्रॉस हो गया, इसके अलावा हैरी ट्रूमैन हो गया। इन सब के थोड़ा सा मिमिक वगैरह भी करके उसको डेवलप किया गया। ठीक है, फिर हमारे पास आगे नेक्स्ट एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हमारे पास हम हेडिंग लेते हैं, हमारे पास आती है पेस्टीज की हेडिंग। इस तरह से आप दूसरी फिल्म्स का भी बनाइएगा, दैट वुड बी गुड फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसने क्या किया, पेस्टीज कहाँ से उठाया। ठीक है, इसके अलावा अब ये पेस्टीज कैसे जनरेट होती है? पेस्टीज फ्रॉम स्टैनले क्यूब्रिक्स फिल्म्स, स्टैनले क्यूब्रिक्स फिल्म। अब स्टैनले क्यूब्रिक्स की फिल्म्स कौन सी हैं? देखें इसके अंदर से क्या उठाया इसने, सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन, आप मेरे साइड वाले नोट्स भी याद कर लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ट्रैकिंग शॉट्स, जूम एंड लो एंगल, ये तमाम आइडियाज़ इन्होंने स्टैनली क्यूब्रिक्स की फिल्म से एक्सट्रैक्ट आउट किए हुए हैं। लो एंगल शॉट्स, ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ से एक्सट्रैक्ट उठाया है। फिर पेस्टीज की दूसरी एग्जाम्पल आती है हमारे पास, डेविड लिंच का स्टाइल है नॉन लीनियर नैरेटिव का, जो कि नोलन ने फॉलो किया हुआ है, बट नोलन ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड ऑन की हैं स्टाइल के अंदर। डेविड लिंच फिल्म्स, अब इनसे क्या एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, यूज़ ऑफ ड्रीम्स, के ड्रीम्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, surreal imagery, ठीक है,
अनएम्बिगुअस एंडिंग्स, सॉरी एम्बिगुअस एंडिंग्स, एम्बिग्विटी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई नोलन की फिल्में समझ में ही नहीं आती, इसकी एक बहुत बड़ी वजह उसकी एंडिंग्स होती हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। इसके अलावा अनरिलायबल नैरेटर्स ने इसने भी यूज़ किए, दोनों ने यूज़ किए हैं। यानी कि एक्चुअल में नोलन के स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। ठीक है, सो हमने क्या किया, आपके सामने जो कोर टेक्निकल एनालिसिस था इस पूरे पार्ट का, हमने उसको भी फर्दर लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। ठीक है।